Autotropic nutrition and heterotropic nutrition. In autotropic nutrition, auto means self and nutrition is the medium. Autotropic nutrition में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं by the use of carbon dioxide, water, sunlight, chlorophyll. All the plants can make their own food. All the plants can perform the autotropic nutrition. And heterotropic nutrition is just opposite to autotropic. Hetero means other, tropics means depend. Is a kind of nutrition in which organisms depend on other. We can, in other words, we can say that all the organisms depend on the plants to obtain their food. The heterotropic nutrition is further divided into three parts, that is known as saprophytic, parasitic and holozoic nutrition. In saprophytic nutrition, the organism obtain the food from the dead and decaying parts of the plants, animals. इसमें सड़े गले चीज से ऑर्गेनिज्म जो खाना ऑब्टेन करते हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में. ये क्लास 9 में भी हम लोग पढ़े हैं, जिसमें मशरूम हमने पढ़ा था. फंगी, मशरूम, these all are the organisms that come into saprophytic nutrition. Parasitic nutrition. Parasitic nutrition is a kind of nutrition, is a way to obtain the energy. In this nutrition, these organisms are depend on the other organisms that is known as host to obtain their food. Suppose that large amount of bacteria are present in our body and they obtain the energy from our body without harming us. Roundworm, they also obtain the energy in the same medium. Plasmodium, lice that is present in the hair. Holozoic nutrition. It is a type of nutrition in which organisms obtain the solid food particles from the plant, animals, etc. Like cat, man. We are all in the holozoic nutrition. Now, further describing more about the autotropic nutrition, all the plants, all the green plants perform the autotropic nutrition. उसमें सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे पत्ता के बारे में देखेंगे, क्योंकि जो फूड फैक्ट्री है, जो किचन ऑफ द प्लांट है, जो प्लांट खाना बनाते हैं, जो वहाँ पे उनकी किचन है, that is known as leaf, because the leaf contain the chlorophyll. Other parts of the plants which also contain the chlorophyll, they can also perform, they can also make their food. But most of the food are made in the leaf. So first of all we have to discuss about the structure of the leaf. जब हम लोग लीफ देखेंगे, पत्ता देखेंगे, कैसे प्लांट वहाँ पे क्लोरोफिल के कारण प्लांट जो है ग्रीन कलर के होते हैं. हमने पढ़ा होगा, प्लास्टिक पढ़े थे हम लोग. प्लास्टिक में दो पढ़े थे हमने क्लोरोप्लास्ट that contain chlorophyll which help in the photosynthesis. प्लांट में देखेंगे जो ये सबसे जो मेन ट्यूब है, जो लॉन्गेस्ट ट्यूब है, जो थिक है, that is known as midrib. एंड मिडरिब के ही बीच में दो टिश्यू हमने पढ़ा था जब क्लास 9 में पढ़े थे. तो एक टिश्यू पढ़े थे जाइलम टिश्यू, एक फ्लोएम टिश्यू पढ़ा था. जाइलम टिश्यू के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि जाइलम टिश्यू वह टिश्यू होता है, ये दोनों टिश्यू को हम लोग वास्कुलर टिश्यू बोलते हैं, जो कोई चीज को ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं. जाइलम टिश्यू को पढ़ा था, जो भी प्लांट को मिनरल, सॉल्ट और वाटर की जरूरत है वह जाइलम के थ्रू जो है पत्ते के पास जाता है, और उसके बाद पत्ते के पास जो खाना बनाता है, खाना तैयार होता है, उस प्लांट को थ्रू आउट द प्लांट ट्रांसपोर्टेशन जो होते हैं वह फ्लोएम टिश्यू करते हैं. तो हमने देखा कि जाइलम टिश्यू का सिर्फ जो है वाटर मिनरल को लीफ के पास लेके जाने का काम है. इसीलिए अगर एग्जाम में या कहीं पूछा जाता है कि अगर जाइलम किस टाइप का मूवमेंट शो करते हैं, तो इनको बोलते हैं हम लोग यूनिडायरेक्शनल. यूनिडायरेक्शनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका काम है सिर्फ जो है मिट्टी से जो है प्लांट तक सॉइल, मिनरल्स, जो इसेंशियल प्रोडक्ट है, जो फोटोसिंथेसिस में जरूरत की काम है, उनको पहुंचाना. लेकिन अगर फ्लोएम की बात करेंगे तो फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट करते हैं. सपोज दैट आई एम द प्लांट, माई रूट, माई हेड, माई हैंड, ऑल दिस पार्ट्स
needs energy. Suppose that this is my hand, this is a leaf. If the hair is food is made, then it is also necessary to transport the food to all parts of the body. तो फ्लोएम टिश्यू वो होते हैं जो प्लांट के हर डायरेक्शन में खाना जब तैयार हो जाता है तो हर डायरेक्शन में फ्लोएम टिश्यू क्या करते हैं, खाना को ट्रांसपोर्ट कराते हैं. इसलिए इनका अगर मूवमेंट आएगा, द मूवमेंट शो बाय फ्लोएम टिश्यू दैट इज नोन एज बाई डायरेक्शनल मूवमेंट. बाई डायरेक्शनल मूवमेंट, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट जो है फ्लोएम टिश्यू शो करते हैं. अब मीट जो लीफ जब देखेंगे हम लोग, तो ये जो लीफ के दो प्लेट टाइप के स्ट्रक्चर हैं उनको हम लोग बोलते हैं लीफ ब्लेड. जो लीफ के एंड पॉइंट उनको हम लोग बोलते हैं लेबिला और लीफ मार्जिन. लीफ के अंदर हमने क्लास 9 में पढ़ा है, दो प्रकार के लीफ होते हैं, एक मोनोकोट लीफ और एक डाइकोट लीफ. आप देखेंगे जो मोनोकोट प्लांट है, वीट हो गया, राइस हो गया, उनके जो पत्ते में देखेंगे तो लीफ के अंदर एक स्टोमाटल पोर होते हैं. स्टोमाटल पोर जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के टेक प्लेस होता है. तो मोनोकोट लीफ में देखेंगे कि पत्ता के ऊपर भी स्टोमाटल पोर है और पत्ता के नीचे भी है. लेकिन डाइकोट लीफ जैसे मैंगो वगैरह में देखेंगे तो उसमें देखेंगे जो स्टोमाटल पोर है वह सिर्फ जो है लीफ के लोअर पार्ट में है, अंदर वाले पार्ट में है, अपर पार्ट पे नहीं है. और लीफ जो है एक कुटिकल, एक वैक्सी सबस्टांस से क्या होते हैं, कवर होते हैं, जो एक्सेस ट्रांसपोर्टेशन को, लॉस ऑफ वाटर को और लीफ बचाते हैं. अब देखिएगा जब वो स्टोमाटल सपोज दैट स्टोमाटल पोर है यहाँ, उसको जो हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो देखेंगे कि बीच में एक पोर है जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेज, सपोज दैट दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड and they release O2 through this stomatal pore. अब ये स्टोमाटल पोर कब खोलेंगे कब बंद होंगे उसको जो कंट्रोल करता है दैट इज नोन एज गार्ड सेल. और गार्ड सेल के ऊपर वाले जो सेल है दैट इज नोन एज एपिडर्मिस, बाहर वाले जो सेल है. और स्टोमाटल पोर, स्टोमाटा जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, कैसे प्लांट खाना बनाते हैं. और आपको एक होमवर्क होगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. लेट्स बाय फॉर राइट नाउ, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.